10 تاریخ کے دن محرم الحرام کا یہ مہینہ یعنی 10ویں تاریخ جو دیگر مسلک اور دیگر لوگوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی 10 تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اس مہینے کے اس 10 تاریخ میں 11 تاریخ میں یا پھر 9 تاریخ میں جو خرافات جو بدعات انجام دیے جاتے ہیں، جو نیک کام سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، وہ کام نیک نہیں بلکہ وہ کام اللہ سے دور کر دینے والا عمل ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم اسلام کے شرائی ہیں، ہم اسلام کے سپاہی ہیں اور ہم اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اسلام کے جھنڈا کو بلند کرنے والے ہیں۔ لیکن ذرا آپ غور کریں کہ اس 10 تاریخ کے دن یا محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی تاریخ میں ماتم یا محرم کے نام پر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو بدعات انجام دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو قرآن و حدیث کی صحیح پیغام اور قرآن و حدیث کے صحیح اصول اور ضوابط معلوم نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو خصوص کر دیا ہے، اختصاص کر دیا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے فرما دیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے 4 مہینے کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے لڑائی جھگڑے اور فرقہ فساد اور دیگر گناہوں سے ہمیں بچنے کی سخت تلقین کیا ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں 12 مہینوں میں تمام دنوں میں تمام مہینوں میں برائی سے روکنے کی تلقین کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر کہا ہے کہ اس میں ظلم کرنا دیگر مہینوں سے زیادہ گناہ ہے، اس میں نیکی کرو گے تو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو ابھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے اور 9 اور 10 تاریخ کو اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یا 10 یا 11 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو 2 روزے رکھنے کی بدولت میں 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو، صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نفلی روزہ میں سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اگر کوئی ہے تو محرم الحرام کے 2 روزے ہیں۔ تو محرم الحرام کا یہ 2 روزہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں یہ 2 روزہ رکھنا چاہیے، اور خاص کر کے محرم الحرام میں ہمیں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور اللہ کی احکام کے خلاف ورزی کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اعراض کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا۔ تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں رزق کی کمی کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن ان لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا جو لوگ خاص کر کے محرم الحرام میں یا کسی بھی مہینے میں اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہیں یا اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں
रिस्क की कमी और उनकी जिंदगी में मुफलिसी और कल्लासी को जो है वो भेज देता है। और कल क़यामत के दिन जब उस शख्स को उठाया जाएगा तो अंधा बना करके उठाया जाएगा, तो बंदा कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं दुनिया में देखा करता था, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, मैं दुनिया में देखा करता था लेकिन ए अल्लाह तूने आज मुझे अंधा बना करके नाबीना बना करके क्यों उठाया है? तो अल्लाह फरमाएगा तूने मेरे आयात को, तूने मेरे पैगामात को, तूने मेरे बताए हुए तरीके को इख्तियार नहीं किया था, तुमने मुझे दुनिया में भुला दिया था, आज तुझे भुला दिया गया है, आज तुझे भुला दिया गया है। तो गोया अगर हम दुनिया में अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते, नमाजों की पाबंदी नहीं करते, मुहर्रमुल हराम में अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाते हैं, खुराफात से नहीं बचाते हैं, झूठ से परहेज नहीं करते हैं, एक दूसरे पर तानाजनी नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे की चुगली और गीबत को नहीं छोड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए वेल और बर्बादी है जो मुहर्रमुल हराम के महीने की अहमियत ना जानता हो और मुहर्रमुल हराम में भी वो गुनाह करता हो, और मुहर्रमुल हराम के महीने पा जाने के बाद भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक प्यारा बंदा और नेक बंदा ना बन सके। वो लोग जो है वो गफलत में है और नादान है, बेवकूफ है, जो अल्लाह के इन 4 महीनों की अदब व एहतराम और इन 4 महीनों में खुसूसी तौर पर अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। तो रमजान का महीना जिस तरीके से रमजान का महीना एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मुबारक महीना है, इसी तरह मुहर्रमुल हराम का महीना, रजब और ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा का महीना भी अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि इन 4 महीनों में, इन 4 महीनों की कदर करो और इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़े से, झूठ से और दीगर बुराइयों से अपने आप को बचा करके तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। तो खास करके इसी महीने में सबसे ज्यादा बुराई और बिदअत हमें देखने को मिलता है। मुहर्रमुल हराम के 10वें तारीख मुख्तसर में आपको मैं एक तारीखी बात बताता चलूं कि 10 तारीख के दिन मुहर्रमुल हराम का ये महीना यानी 10वें तारीख जो देगर मसलक और देगर लोगों के नजदीक बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक भी 10 तारीख की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन इस महीने के इस 10 तारीख में, 11 तारीख में या फिर 9 तारीख में जो खुराफात, जो बिदआत अंजाम दिए जाते हैं, जो नेक काम समझ करके किया जाता है, वो काम नेक नहीं बल्कि वो काम अल्लाह से दूर कर देने वाला अमल है। वो अमल कौन सा है? कुछ लोग दावा करते हैं कि हम इस्लाम के नाम लेवा हैं, हम इस्लाम के शराई हैं, हम इस्लाम के सिपाही हैं और हम इस्लाम की हिफाजत करने वाले हैं, हम इस्लाम के झंडा को बुलंद करने वाले हैं। लेकिन जरा आप गौर करें कि इस 10 तारीख के दिन या मुहर्रमुल हराम के महीने में किसी भी तारीख में मातम या मुहर्रम के नाम पर हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर जो बिदात अंजाम दिया जाता है, उन लोगों को कुरान और हदीस की सही पैगाम और कुरान और हदीस के सही उसूल और ज़वाबित मालूम नहीं है। हजरते हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो 50 हिजरी में उनका इंतकाल हो जाता है। हजरते हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहयात रहते हैं, लेकिन 60 हिजरी में हजरते अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का भी इंतकाल हो जाता है, जो कि उनके हाथों में इक़्तिदार और हुकूमत था। जब 60 हिजरी में हजरते अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल होता है तो उनके बेटे यजीद बिन माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो इख्तिदार को संभालते हैं, हुकूमत को संभालते हैं। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो एतराज करते हैं कि मुझे ये हुकूमत पसंद नहीं है,
मुझे ये हुकूमत पसंद नहीं है, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो उसकी मुखालिफत करते हैं। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पूरे तमाम के तमाम अपने चाहने वालों को जमा करते हैं कि इख्तिदार में उसको नहीं बिठाया जाए, हुकूमत उनके हाथों में नहीं दिया जाए। ये बात जब यजीद के मानने वालों को, यजीद और उसके चाहने चेलों को जब पता चलता है, जब उनके कानों तक ये बात पहुंचती है कि हमारी हुकूमत के खिलाफ ये लोग खड़े हैं, तो वो लोग हजरत यजीद बिन माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो यजीद माविया पीछे हट जाते हैं। उसके बाद लोग आपस में मीटिंग करते हैं कि चलो हम हजरत हुसैन को अपना रहबर और अपना लीडर बनाते हैं, जो कि वो लोग झूठ और एक मंसूबा बना रहे थे हजरत हुसैन को कत्ल करने के लिए। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास खत भेजते हैं कूफा वालों की तरफ से। तकरीबन 12,000 खत आते हैं कि आप कूफा चले आए, हम आपके हाथों में बैत करेंगे, वादा करेंगे और आपको जो है खलीफा बना देंगे, एक हुकूमत आपके हाथों में दे देंगे। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा नहीं जाते हैं, पहले आप अपने चचेरे भाई को भेजते हैं वहां के हालात का जायजा लेने के लिए कि जाओ देखो वहां के हालात कैसा है और मुझे बताओ कि ये लोग वाकई में सच बोल रहे हैं कि ये हमें हुक्मरां और मेरी हाथों में हुकूमत देने वाले हैं। तो जब उनके चचाजाद भाई कूफा जाते हैं तो देखते हैं कि मामला बड़ा अच्छा है, यानी सब लोग हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में बैत करने के लिए तैयार हैं, हजरत हुसैन को अपना हुक्मरां बनाने के लिए तैयार हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई वहां से खत भेजते हैं कि यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कूफा चले आए। जैसे हजरत हुसैन अपने काफिले के साथ कूफा की तरफ चलते हैं तो बीच रास्ते में पता चलता है कि आपके चचाजाद भाई का उन लोगों ने शहीद कर दिया। आप रुक जाते हैं, अपने काफिले को रोक देते हैं और मशवरा कर ले लगते हैं कि क्या हमें कूफा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें कूफा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उनके साथियों ने, हजरत हुसैन के चाहने वालों ने ये मशवरा दिया कि यकीनन हमें जाना चाहिए, उन लोगों से लड़ाई करेंगे और अपने भाई के खून का बदला उनसे लेंगे। हजरत हुसैन जब वहां जाते हैं तो कूफा वाले उन इंसान के नाम पर कलंक लोग और मुसलमान के नाम पर कलंक वहां खड़े हुए काफिर और खून के प्यासों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और 3 दिन तक बंधक बना करके रखा, भूखा प्यासा, पानी भी नहीं दिया और खाने के लिए खाना भी नहीं दिया। और आखिर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा वालों ने शहीद कर दिया। उनके सीने पर जो है वार किया, उनके जिस्म को उनके सर से अलग कर दिया, उनके ऊपर घोड़ा दौड़ा दिया और उनके ऊपर ना जाने कौन कौन से खंजर और कौन कौन से हथियारों से वार किया गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की बात है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को 10 मुहर्रम के दिन उनको शहीद कर दिया जाता है। अब यहाँ बात आती है, यकीनन हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा हमें उनसे शफकत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो लोग हजरत हुसैन और हसन से बुग़्ज़ रखता है या दुश्मनी रखता है तो वो मुझसे दुश्मनी रखता है और मेरे खिलाफ अपने दिलों में पाप रखता है। यानी इनसे मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना या इनके खिलाफ काम करना मेरे खिलाफ काम करने के बराबर है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का सदमा हमें भी है और इस्लाम के उन तमाम के तमाम लोगों को भी है जो इस्लाम के सही पैगाम के ऊपर अमल करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को यकीनन शहीद कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नौह और मातम करें, हम चीखें और चिल्लाएं। अगर हमारे घरों में किसी का इंतकाल हो जाता है,
बेटा हो या बेटी, माँ हो या बाप, भाई हो या बहन, किसी का भी इंतकाल होता है तो इस्लाम की तरफ से हमें सिर्फ 3 दिन की इजाजत दी जाती है। आप 3 दिन तक मातम मना सकते हैं, 3 दिन तक आप गमज़दा माहौल में रह सकते हैं, अपने आंखों से आंसू बहा सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद मातम करना इस्लाम में नाजायज है, बल्कि हराम के मानिंद है। 3 दिन से ज्यादा हम मातम नहीं मना सकते, 3 दिन से ज्यादा हम चीखो पुकार, बल्कि इस्लाम में अपने चेहरों पर मारना, अपने जिस्मों पर मारना या चीखो पुकार करके रोना, गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला चिल्ला कर रोना भी इस्लाम में नाजायज है। यहाँ तो बाकायदा काले और हरे कपड़े पहन करके अपने जिस्मों पर मारा जाता है, अपने रुखसार और अपने गाल पे तमाचे मारे जाते हैं, चिल्लाते हैं, ढोल ताशा होता है और हरे झंडियां जो है गाड़ी जाती है। क्या इस्लाम में कहीं इसका सबूत और दलील हमें मिलता है? यकीनन इस्लाम में कहीं भी कुरान और हदीस में मातम का ये तरीका और मातम का ये अंदाज हमें नहीं मिलता है। जब इस्लाम में और कुरान में या इस्लाम के किसी तारीखी किताब में जब हमें ये वाक़ियात, ये मिसाल, ये दलाइल हमें नहीं मिलता है, तो हम अगर वो काम करते हैं, जब हमें इस्लाम के सहाबा ने या सहाबा के बाद ताबेईन ने, खुलफाए राशिदीन ने या ताबेईन ने, जब हमें 12 या 10 या 9 या 11 मुहर्रमुल हराम के दिन हरी झंडियां गाड़ना और मेले लगाना, ढोल ताशा करना और डंडों से खेलना, जब हमें इसका सबूत किसी भी इस्लाम के तारीखी किताब में नहीं मिलता है, उसके बावजूद हम करते हैं, तो यही बिदअत है, यही बिदअत है। और ये बिदअत गुमराही है, गुमराही ज़लालत है, और ये गुमराही जहन्नम के करीब ले जाने वाला अमल है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, अल्लाह ताला फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, भूख की कमी से आजमाएंगे, जान लेकर के आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस, हम तुम्हारी जान को लेकर के आजमाएंगे, हम तुम्हें मालो दौलत दे करके और मालो दौलत छीन करके भी आजमाएंगे। तो गोया अगर हमारी घरों में किसी का इंतकाल होता है तो ये अल्लाह की आजमाइश है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इम्तिहान है। अगर हम चिल्लाएं, चीखें या अपनी जबान से कोई ऐसी वाहियात और गलत अल्फाज निकाल करके रोए, तो ये बिदअत है। और इस्लाम के नजर में जान अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे जिस वक्त चाहे अपनी अमानत को वापस ले सकता है। हमारा इख्तियार और हमारे ऊपर कोई हक नहीं है कि हम किसी को एक दिन भी ज्यादा हम उनको जिंदा रख सकते हैं, कितना भी कोशिश कर ले। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे आपको या किसी को भी, तो आपको बिस्तर पर लेटे लेटे मौत के घाट उतार सकता है, रास्ते पे चलते हुए भी आपको मौत की नींद सुला सकता है। आपके जिस्मों के अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई जो है वबा नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो पलक झपकते ही आपके अंदर वो बीमारियां और वो वबा और वो मर्ज पैदा कर दे जिसका हमें इलाज और जिसका हमें कोई तसव्वुर भी ना हो, और हमें पलक झपकते ही मौत के घाट भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उतार सकता है। तो गोया जान अल्लाह की अमानत है। अगर अपने बेटों से, अपने भाइयों से मोहब्बत है, अपने माँ बाप से मोहब्बत है या सहाबा से मोहब्बत है, हजरत हसन या हजरत हुसैन से आपको मोहब्बत है, तो यकीनन सदमा होना चाहिए। लेकिन मातम करना और नोह करना इस्लाम में किसी भी तारीखी किताब में, हदीस के किसी भी किताब में या किसी भी खुलफाए राशिदीन की तहरीर में हमें नहीं मिलता है, तो हमें वो काम नहीं करना है। मुहर्रमुल हराम में हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करना है। जो लोग अपनी सरों में हरे कपड़े बांध करके, जो लोग अपनी हाथों में
हरी झंडियां पकड़ करके और हरे हरे कपड़े पहन करके चीखते और चिल्लाते हुए एक काफिले के साथ निकलते हैं। उन लोगों से पूछिए, क्या उन लोगों ने मुहर्रमुल हराम के इस महीने में कुरान की तिलावत किया है? उन लोगों से सवाल कीजिए, क्या मुहर्रमुल हराम के इस महीने में उन्होंने झूठ बोलने से परहेज किया है? उनसे पूछिए, क्या मुहर्रमुल हराम के इस महीने में 2 रोजे जो अल्लाह के नबी ने रखा और अल्लाह के नबी ने दूसरों को रखने का हुक्म दिया, क्या वो लोग ये 2 रोजे रखे? उन लोगों से सवाल कीजिए, क्या तुम इन 4 महीनों में और मुहर्रमुल हराम में अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने आलो औलाद को शराब से, जुए से और देगर गुनाहों से बचाने की कोशिश की है? तो यकीनन वो लोग इन तमाम गुनाहों से इज्तिनाब नहीं किया है, बल्कि इन तमाम गुनाहों को बिल्कुल खुशी खुशी और छोटी छोटी और मामूली गुनाह समझ करके अंजाम देता है। लेकिन वो ये पेश करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम इस्लाम के शदाई हैं, हम इस्लाम के हीरो हैं। कुछ लोगों के नजदीक ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी बढ़कर वो मुहर्रमुल हराम के 10वें तारीख को मानते हैं। और मुहर्रमुल हराम के इस महीने में जो खुराफात, जो ताजिया निकाला जाता है, जो ताजिया निकाला जाता है, जो ढोल बजाए जाते हैं और जो डंकिया और डंटों से जो है खेला जाता है, ये करना इस्लाम में हमें किसी भी किताब में नहीं मिलता है। वो लोग ये करते हैं, लेकिन इस्लाम की तारीखी किताब में, इस्लाम के हदीसों में और शरीयत के बताए हुए तमाम सिफात में हमें मिलता है कि मुहर्रमुल हराम में गुनाहों से बचाना, मुहर्रमुल हराम में अपने आप को गुनाहों से रोकना, मुहर्रमुल हराम में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करना, ये तमाम दलाइल हमें कुरान में मिलता है। हम वो नहीं करते हैं, हम वो करते हैं जिसका दलाइल और जिसका सबूत कुरान और हदीस में है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला तो हमें इन तमाम खुराफात से महफूज रख, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें इस दुनिया में जब तक जिंदा रखना, ईमान की हालत में रखना और हमारी खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो, आमीन।